السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان پروگرام نور حیات کی ایک تازہ قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام سے ہم نے ایک نئی کتاب یعنی مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں نے اس انجیلی بیان کا انتخاب کیوں کیا۔ ہمیں اناجیل متوافقہ میں اور مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں چند فرق نظر آئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فرق تو پس منظر کا فرق ہے، یعنی گلیل بمقابلہ یروشلم۔ دوسرا فرق سن تحریر کا ہے، اس زمانے کا ہے، یعنی وہ زمانہ جو اناجیل متوافقہ کے لکھے جانے اور مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے لکھے جانے کے درمیان تھا۔ مقدس یوحنا نے چند بدعت کو اپنا نشانہ بنایا اور انہوں نے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں صحیح تعلیم فراہم کی۔ پھر خداوند یسوع مسیح کی زبان میں ہمیں بڑا گہرا فرق نظر آتا ہے۔ اناجیل متوافقہ میں وہ مچھیروں سے، کسانوں سے، مزدوروں سے بات کرتے ہیں تو تماثیل کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں وہ یروشلم میں علماء اور فقہاء سے بات کرتے ہیں تو ان کا لہجہ، ان کے الفاظ کا چناؤ ہمیں یکسر مختلف نظر آتا ہے۔ وہ دلیل کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا مقصد مقدس یوحنا ہی کے الفاظ میں بتایا تھا، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس پر ایک دفعہ اور بھی نظر کریں۔ مقدس یوحنا اپنے انجیلی بیان کا مقصد کچھ یوں بیان کرتے ہیں اپنے انجیلی بیان کے 20ویں باب کی 31ویں آیت میں، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ وہ ہمیں حقیقی مسیح سے متعارف کروانا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یسوع کون تھے، اور نہ صرف علم فراہم کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں ایمان کی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ اس ایمان کا اجر بھی بتا دیتے ہیں، یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ دوستو، یہی ہے اس پروگرام کا مقصد بھی۔ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حقیقی مسیح کو جان سکیں، اس پر ایمان لا سکیں اور اس کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ دوستو، آپ کے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا ہوگا کہ ہم کیسے اتنے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یوحنا ہی اس انجیل کے مصنف ہیں، جبکہ ان کا نام کہیں بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ اس انجیلی بیان میں نہیں آیا۔ آپ کا کہنا درست ہے، ہمیں کسی بھی انجیلی بیان میں اس کے مصنف کا نام نہیں ملتا۔ اسی طرح سے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں بھی ہمیں ان کا نام بطور مصنف نہیں ملتا، لیکن چند دلائل ہیں جو کہ ہمیں اس بات پر قائل کر سکتے ہیں کہ مقدس یوحنا ہی اس انجیلی بیان کے مصنف تھے۔ پہلی ایک اندرونی دلیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مقدس یوحنا نے اپنے نام سے اپنے آپ کو اس انجیلی بیان میں متعارف نہیں کروایا، لیکن کئی مقامات پر وہ اس شاگرد کا حوالہ دیتے ہیں جس سے کہ یسوع مسیح سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے۔ مورخین کا، مؤلفین کا اور مفسرین کا یہ کامل گمان ہے کہ یہ اشارہ ان کی اپنی ذات کی طرف تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بیرونی دلیل بھی ہے۔ دوسری صدی عیسوی کے وہ تمام کلیسیائی بزرگ جنہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے کتابیں تحریر فرمائیں، اس بات پر متفق ہیں کہ یہ انجیلی بیان مقدس یوحنا ہی کا تحریر شدہ ہے۔ اولین کلیسیائیں اس بات پر ایمان رکھتی تھیں کہ مقدس یوحنا ہی اس انجیلی بیان کے
मुसन्निफ हैं। एक और दलील है जो थोड़ी सी पेचीदा है। मुकद्दस यूहन्ना ने सिर्फ ये इंजीली बयान ही तहरीर नहीं फरमाया, बल्कि 5 किताबें नए अहदनामा की उनके नाम से मौसूम हैं। यानी ये इंजीली बयान, उसके अलावा उनके वो 3 खतूत जो उन्होंने मुख्तलिफ कलीसियाओं के नाम तहरीर फरमाए, और फिर बाइबल मुकद्दस की नए अहदनामे की आखिरी किताब यानी मुकाशफा की किताब, जिसको यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा कहा जाता है। मुकाशफा की किताब में यूहन्ना रसूल अपने आप को नाम लेकर मुतारिफ करवाते हैं, और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं कि मुकाशफा की किताब जनाबे यूहन्ना ही ने तहरीर फरमाई थी। मुकाशफा की किताब में हमें एक ऐसा अदद मिलता है जो बार बार हमारे सामने आता है, यानी 7 का अदद, कामलियत का अदद। यूहन्ना आरिफ के मुकाशफे में हमें 7 कलीसियाएं नजर आती हैं। उसके बाद हमें 7 मोहरें नजर आती हैं जो कि यके बाद दीगरे खोली जाती हैं। फिर उसके बाद हमें 7 प्याले नजर आते हैं, यानी वो एक 7 का अदद बार बार मुकाशफा की किताब में दोहराया जाता हुआ हमें नजर आता है। अगर हम इस इंजीली बयान पर भी तवज्जो करें तो यहां पर भी हमें वही अदद यानी 7 का अदद बार बार नजर आता है। इस इंजीली बयान में खुदावंद यीशु मसीह के 7 मौजज़ात का इंदराज किया गया है। इसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह के 7 मसीहाई दावाजात भी हमें इस किताब में मिलते हैं। इसके बाद दूसरे लोगों से मौसूम हमें 7 इकरार नजर आते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ये ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि देखो खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। पतरस हमें ये इकरार करते हुए नजर आते हैं कि हम किसके पास जाएं, जिंदगी की बातें तो सिर्फ तेरे ही पास हैं। और फिर आखिर में तूमा हमें ये इकरार करते हुए नजर आते हैं, आए खुदामंद, आए खुदा। तो 7 निशानात, 7 मौजज़ात, 7 मसीहाई दावे और उसके बाद 7 इकरार। मुकाशफा की किताब जो यूहन्ना ने तहरीर की, वहां पर भी हमें 7 का अदद हावी नजर आता है, और इस इंजीली बयान में भी 7 का ही अदद हमें हावी नजर आता है, जिसका ये गुमान हो सकता है कि ये दोनों किताबें एक ही मुसन्निफ की तहरीर शुदा हैं। मुकाशफा की किताब यूहन्ना आरिफ ने तहरीर फरमाई, जो याकूब के भाई और जबदी के बेटे थे। हम ये गुमान कर सकते हैं कि ये इंजीली बयान भी उन्हीं का तहरीर शुदा है। दोस्तों, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको इस किताब का एक खाका दिखाया था जो इस किताब को समझने में हमारी मदद करता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस किताब की पहली 18 आयात को इस किताब का दिबाचा या इब्तिदाइया कहा जाता है। इस दिबाचा में हमें वो तमाम बातें नजर आती हैं जो कि आगे आकर इस इंजील में तफसील से बयान की गई हैं। और फिर मैंने उस दिबाचा की मरकजी आयत भी आपके सामने रखी थी, यानी मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत, जहां लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका वैसा ही जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और एक खाका इस इंजील का हमें इस बात पर भी बयान कर सकते हैं कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल लोगों तक पहुंचा। पहली 18 आयात तो वही हैं दिबाचा, और वो इस खाके में भी वैसे ही बयान की गई हैं। तो आइए दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को सामने रखते हुए इस किताब का एक खुलासा, इस किताब का एक खाका मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहले बाब की पहली 18 आयात तो बिल्कुल वैसे ही दिबाचे के तौर पर हमारे सामने रहेंगी।
पहले बाब की 19वीं आयत से लेकर 12वें बाब की 50वीं आयत तक हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को उसके तजस्सुम में देखते हैं। तजस्सुम क्या है, इस पर हम आगे आने वाले प्रोग्रामों में बात करेंगे। उसके बाद हम 13वें बाब की पहली आयत से लेकर 20वें बाब की 31वीं आयत तक खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उसकी क़यामत में उसके जलाल को देखेंगे। और आखिर में वो 21वां बाब जो इख्तितामिया के तौर पर हमारे सामने आता है। 2 प्रोग्रामों में मैंने आपको इस किताब के 2 खाके बयान फरमाए हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इनमें से किस खाके को अपनाएं। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि आप इस इंजीली बयान को बार बार पढ़ें, उस हकीकी मसीह को जानने की कोशिश करें जिसको कि इस इंजील में पेश किया गया है, उस पर ईमान लेकर आएं और उस ईमान के वसीले से हमेशा की जिंदगी पाएं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 7 निशानात का, 7 मौजज़ात का और 7 मसीहाई दावों का जिक्र आपके सामने किया था। अनाजील मुतवाफिका में हमें खुदावंद यीशु मसीह के बहुत सारे मौजज़ात मिलते हैं, लेकिन यूहन्ना रसूल ने उनमें से सिर्फ 7 का इंतखाब किया और वो उन 7 मौजज़ात को हमारे सामने पेश करते हैं। वो 7 मौजज़ात कौन से हैं? दूसरे बाब में हमें खुदावंद यीशु मसीह कानाए गलील की शादी में पानी को मैं में तब्दील करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जब हम चौथे बाब में आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह एक हुक्मरान के बेटे को शिफा देते हुए नजर आते हैं। और इस मौजज़े की खास बात यह है कि ये शिफा दूर से दी गई, यानी यस्सु कानाए गलील में थे और वो बच्चा कुफरनहूम में था। 5वें बाब में हमें वो मफलूज नजर आता है जो 38 साल से बैतहस्दा के हौज के किनारे लेटा हुआ था और उसको अब तक शिफा नहीं हुई थी। यस्सु मसीह ने उसको शिफा दी। 6ठे बाब में खुदावंद यीशु मसीह के 2 मौजज़ात हमें मिलते हैं। एक मौजज़ा 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाने का था और दूसरा मौजज़ा पानी पर चलने का। उसके बाद 9वें बाब में हमें खुदावंद यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को शिफा देते हुए नजर आते हैं और 11वें बाब में हमें खुदावंद यीशु मसीह का वो आखिरी मौजज़ा मिलता है जहां पर उन्होंने 4 दिन के मुर्दे को, यानी उनका दोस्त लाजर जो मर चुका था और जिसकी तदफीन हो चुकी थी, जिसको मरे हुए 4 दिन गुजर गए थे, उसको मुर्दों में से दोबारा जिंदा किया। खास बात यह है कि यूहन्ना रसूल इनको मौजज़ात नहीं कहते, बल्कि वो इनके लिए निशानात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वो मौजज़े को निशान कहते हैं। बड़ा आसान है मौजज़े में गुम हो जाना, बड़ा आसान है शिफा हासिल कर लेना और उसकी खुशी मनाना, लेकिन यूहन्ना रसूल इस बात की तरफ निशानदही करते हैं कि मौजज़ा सिर्फ एक निशान है और निशान का काम सिर्फ इतना होता है कि वो अपने से किसी बड़ी हकीकत की तरफ इशारा कर सके। यूहन्ना रसूल ने बड़ी मेहनत करके 7 मौजज़ात का, 7 निशानात का इंतखाब किया और ये सब के सब निशानात एक ही तरफ इशारा करते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत। इसके अलावा इस इंजीली बयान में हमें खुदावंद यीशु मसीह के 7 मसीहाई दावों का जिक्र मिलता है और ये सब के सब दावाजात मैं हूं पर आकर खत्म होते हैं। दोस्तों, अगर आपने खरूज की किताब पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि खुदा ताला ने अपने आप को मूसा पर और बनी इसराइल पर एक खास नाम के वसीले से जाहिर किया और वो नाम था यहोवा। और यहोवा के मानी है मैं जो हूं सो मैं हूं, यानी मैं हूं। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए इसी तरकीब का इंतखाब करते हैं, यानी मैं हूं। 7 दावाजात हैं।
6 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जिंदगी की रोटी मैं हूं। और हम ये भी देख सकते हैं कि वो 7 निशानात जो मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान में पाए जाते हैं, वो इन 7 मसीही दावाजात से जुड़े हुए हैं। पहले यीशु मसीह ने 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया और उसके बाद कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। 8वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने यह दावा किया, दुनिया का नूर मैं हूं। और यह दावा उन्होंने उस वक्त किया जब वो ईद ख़याम मनाने के लिए यरूशलेम में मौजूद थे। ईद ख़याम का रोशनी से बड़ा गहरा ताल्लुक था और यहीं पर खड़े होकर जनाब मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। 10वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह के 2 दावाजात का जिक्र हमें मिलता है। पहले खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। और उसके बाद उन्होंने ये दावा फरमाया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। 11वें बाब में, जिसमें उन्होंने लाजर को मुर्दों से जिंदा किया, उनका एक दावा मौजूद है, कयामत और जिंदगी मैं हूं। और 14वें बाब में उन्होंने अपने शागिर्दों से फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और 15वें बाब में उनका आखिरी दावा हमें नजर आता है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। यीशु मसीह अपने मसीह होने के लिए ये दावाजात करते हैं और वो अपने लिए वही नाम मुंतखब करते हैं जो पुराने अहदनामा में खुदा ताला ने, खुदा बाप ने अपने लिए किया। एक और बात आपके गोश गुजार कर दूं, अगर हम इस इंजीली बयान का यूनानी मतन पढ़ें, यानी जिस जुबान में वो लिखी गई थी, तो मुकद्दस यूहन्ना निहायत ही सादा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इसके मानी पर गौर करते हैं तो ये इंजील हमें बहुत गहरी नजर आती है। तो एक तरफ तो ये बहुत आसान है और दूसरी तरफ इसमें बहुत गहराई भी है। एक और बात जाते जाते आपको बताता चलूं, मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान को नए अहदनामे का पाक तरीन मकान कहा जाता है। अगर आप बनी इसराइल की हैकल के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि उसका मरकजी मकाम एक कमरा था, एक ऐसा कमरा जिसको एक दबीज पर्दा लगाकर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्से को, जो पर्दे के पीछे था, पाक तरीन मकान कहा जाता था, यानी होली ऑफ होलीज, और पर्दे से आगे का जो हिस्सा था उसको पाक मकान या द होली प्लेस कहा जाता था। पाक तरीन मकान में अहद का संदूक था जिसके ऊपर कफारा गाह थी, और यहूदी ईमान के मुताबिक खुदा ताला खुद उस कफारा गाह पर तशरीफ रखते थे। इस पाक तरीन मकान में सिर्फ सरदार काहिन जा सकता था, और वो भी साल में सिर्फ एक दफा, यानी योम कफारा पर। उस पाक तरीन मकान में खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी, खुदा का जलाल सकूनत करता था। और इसी तरह से मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान को तमाम अनाजील का पाक तरीन मकान कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हमें खुदावंद यीशु मसीह का जलाल नजर आता है। जब साल में एक दफा सरदार काहिन अंदर जाता था तो वो सारी उम्मत के लिए, बनी इसराइल कौम के लिए खुदा ताला के हजूर में शिफात करता था, मुआफी की दरखास्त करता था। और यहां पर इस इंजील के 17वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह सरदार काहिन के तौर पर हम सब के लिए दुआ करते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से इस इंजील को तमाम अनाजील का पाक तरीन मकान कहा जाता है। दोस्तों, तैयार रहिएगा। जिस जगह पर सिर्फ साल में सरदार काहिन एक दफा जा सकता था, अगले प्रोग्रामों में मैं आपको वहां लेकर जाऊंगा
جہاں پر خدا کی حضوری ہوگی، خدا کی معموری ہوگی، خدا کی موجودگی ہوگی، خدا کا جلال ہوگا۔